Yeah, it has properties similar to alkali metals and halogens. And how it has similar properties, that we'll see here as we proceed with the class. Okay, so here basically we'll be studying about hydrogen and also hydrogen compounds. Few special compounds of hydrogen we'll be studying here, like we'll discuss about water, we'll discuss about heavy water, we'll also discuss about hard water, and we will also study about hydrogen peroxide. These are few important compounds of hydrogen which we'll study here. Okay, now, so in general, can you tell me what reaction do you observe which takes place in stars and in sun? Which kind of reaction takes place there? Do hydrogen have any role over there in the Sir, reactions taking place? Yes, sir. nuclear Yes, fission. sir. Nuclear Nuclear fission. nuclear fusion reaction. ठीक है? Yes, sir. What is that reaction? What happens in that reaction? Fusion reaction is there. ठीक है? ये हमको पता है fusion होता है. Fusion means what? Fusion of hydrogen atoms. Yes, Correct? sir. Small Hydrogen nuclei. molecules become big molecules. Yeah, correct. So देखो यहाँ पर fusion होता है hydrogen nuclei का. And when hydrogen nuclei fusion occurs, then a large quantity of energy is released. Okay, and helium is formed here. So if you see the reaction, the fusion reaction which takes place here, fusion reaction taking place at sun and the other stars. This is just a general idea to give how hydrogen is a very highly reactive element. Okay, so if you see here, the four atoms of hydrogen react with each other to form a helium nuclei, 2He4. Yes, Prajwal. And a large amount of energy is released over here. This reaction called as a fusion reaction. Okay, चलो अब हम बात करते हैं position of hydrogen, which some of you already said here that hydrogen can either be placed in group 1 or group 17. It is not having a proper place in the periodic table, but still, if we see that which all groups hydrogen can have similar properties with, so let's talk about that here. So position of hydrogen in the periodic table is not as such fixed, but it is the first element. How many protons, electrons, and neutrons hydrogen have? One. One. One proton, Z- One one electron, electron, zero neutron. zero Zero neutron. neutron. So it is the first element of the periodic table. Okay. And what is its atomic number and mass number? One. Sir, one. One. One is the One. atomic number. ठीक है? So one proton we can say, one electron we can say. This electron is present in K shell. This electron is present in the K shell of the atom. And what is its electronic configuration in general? 1s1. 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 ठीक है? Electronic configuration of this hydrogen will be 1s1. Now, as you can see here, that hydrogen यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है. ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है. तो इसका मतलब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, then it shows properties similar to which group, which family? Noble gases. Noble gases. Non-metal. Non-metal. देखो नॉन मेटल्स तो एक Non- बड़ा कैटेगरी हो गया. Halogen, sir. Halogen. हेलोजेंस, करेक्ट. नॉन मेटल तो एक जनरल कैटेगरी बोल दिया आपने. ठीक है? हेलोजेंस. So we can say here that it can lose electrons as well as it can gain electrons. It can lose one electron as well as gain one electron. तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, that means it has similarity. Halogens. It has similar properties with halogens. And if it loses one electron, that means it has similar properties to those of alkali metals. ठीक है? यहां तक आपको क्लियर है? अब हम जरा प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ये मोर डिटेल्स में कि which all properties hydrogen have similar to alkali metals and Sir, which. sir, Yes. sir, थोड़ा सा ऊपर scroll करो ना.
हाँ थैंक यू सर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पर्टिकुलरली डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की हेलोजेंस के साथ सिमिलर है और कौन सी प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स के साथ सिमिलर है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज सिमिलर टू अल्कली मेटल्स। So we have resemblance with alkali metals. ठीक है, देखिए तो अल्कली मेटल्स के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1. वन वैलेंस 1. इलेक्ट्रॉन, एंड हाइड्रोजन आल्सो हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, सो इट कंटेन्स वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हमने यहाँ पर देखा। What other similar properties they have? They can lose one electron, correct? They can lose one electron and form monovalent cation. ठीक है, they can lose one electron and form monovalent cation. जिस तरह से कोई भी अल्कली मेटल, लेट इट बी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम एटसेट्रा, as they form monovalent cation, similarly hydrogen can also form monovalent cation like those of alkali metals. तो अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये क्या बनेगा? H plus, it loses one electron. Similarly sodium shows similar property. ठीक है, हाइड्रोजन loses one electron and forms a monovalent cation. इसका मतलब हम बोलते हैं कि alkali metals are electropositive in nature. समीर, any doubt? No, sir. जैसा कि हम बोलते हैं कि alkali metals are electropositive in nature because they easily lose one electron. Similarly, halogen also has electropositive nature. That means it shows electropositive nature. ओके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के बारे में आपने पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा होगा पहले कि जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं दे हैव इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर. सो इट शोज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर एंड also shows +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ पर शो करता है. ठीक है, ये हुआ सेकंड सिमिलैरिटी. थर्ड सिमिलैरिटी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो थर्ड सिमिलैरिटी यहाँ पर क्या होती है, क्या हो सकती है? देखिए, सिमिलर टू द इलेक्ट्रोलिसिस, similar to electrolysis of alkali metal salts. अल्कली मेटल सॉल्ट्स. देखो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस, अच्छा कोई जानता है इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? एनीबॉडी नोस? देखो इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पर दो टर्म से मिलकर बना है. दिस रिफर्स टू इलेक्ट्रिसिटी एंड लिसिस रिफर्स टू ब्रेकडाउन. ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसके कैटायंस और एनायंस अलग अलग हो जाते हैं, और कुछ आयंस जो हैं, जो कैटायंस हैं which are positively charged, they move towards the negatively charged electrode which is cathode. कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है तो सारे कैटायंस जो हैं वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं और सारे एनायंस के जो हैं वो एनोड की तरफ मूव करते हैं. तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि जब हम किसी अल्कली मेटल सॉल्ट्स का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मान लो हमने लिया NaCl सॉल्यूशन. अगर आपने NaCl सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया, ठीक है, अगर आपने NaCl सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया तो मुझे बताइए आपको कैथोड पर क्या मिलेगा? Na plus. हाँ, कैथोड Na पर आपको plus. मिलेगा सोडियम. ठीक है, कैथोड पर आपको मिलेगा सोडियम मेटल. जो भी सारा Na+ है, Na+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कैथोड पर जाकर रिड्यूस हो जाएगा
और कैथोड पर आपके पास जो कैथोड का रॉड होगा आपके पास, उस पर सारा सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा इस तरह से। अब अगर एनोड की बात करें तो एनोड पर क्या मिलेगा आपको? Cl minus Cl minus Cl माइनस हमारे पास था सॉल्यूशन में, ठीक है, Cl माइनस हमारे पास सॉल्यूशन में था। अब एनोड पर क्या होता है, आप हमेशा याद रखना, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो जो Cl माइनस है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा। Cl माइनस विल लूज द इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल बिकम Cl2, तो क्लोरीन गैस लिबरेट होगी एनोड पर। क्लोरीन गैस विल बी लिबरेटेड एट एनोड, ठीक है। इज दिस पॉइंट क्लियर? yes Yes. चलिए अब मुझे बताइए कि अगर हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कैथोड पर आपको क्या मिलेगा? sir hydrogen Hydrogen. हाइड्रोजन आपको मिलेगा। ऑन डूइंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यू गेट हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि हियर ऑल्सो हाइड्रोजन इज शोइंग सिमिलर प्रॉपर्टीज एज वी सी इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अल्कली मेटल सॉल्ट्स। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? yes sir चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पर देखते हैं। सो अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है तो बताइए हाइड्रोजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? oxidation सर ऑक्सीडेशन। हाँ, हमने यहाँ पर क्या देखा, H2 गैस जो था, ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो वो क्या बन गया 2H+। देखिए यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0 और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +1। ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है, इसका मतलब हाइड्रोजन का हुआ ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है तो दूसरों को ये क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकते। दूसरों को ये रिड्यूस कर सकता है। दैट मीन्स हाइड्रोजन बिहेव्स एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन बिहेव्स एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट बुक आपको क्या रिफर करना है? एनसीईआरटी, ठीक है। आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाइन टू लाइन एनसीईआरटी जो है अच्छे से पढ़ लेना है। बस अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लिया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन बिहेव्स एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। चलिए कुछ एक और प्रॉपर्टी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है। पीरियोडिक टेबल में जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं ये सबके साथ रिएक्ट करता है। मतलब ये सल्फाइड्स बनाता है, ये ऑक्साइड्स बनाता है और हेलाइड्स बनाता है। ऑलमोस्ट हर तरह के कंपाउंड्स बनाता है, हाइड्राइड्स बनाता है इनफैक्ट, ठीक है। सो इट फॉर्म्स ऑक्साइड्स, it forms oxides, forms halides, hydrides, etc. ये सारी हो गई similarities with alkali metals. These are the similarities which it shows with alkali metals. Next हम बात करते हैं resemblance with halogens. Resemblance with halogens. चलिए मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ये हेलोजन के साथ सिमिलरिटी रखता है? sir to gain one electron Valency. चलिए एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकता है, वैलेंसी 1 शो करता है, और electronegative सर इलेक्ट्रोनेगेटिव। Electron. इलेक्ट्रोनेगेटिव, और बताओ। अच्छा है, ये मुझे बताओ कि जो हेलोजेंस हैं वो किनके साथ रिएक्शन शो करते हैं? अल्कली और Alkali metals. Alkali earth metals. metals किस तरह के कंपाउंड्स बनाता है हेलोजेंस? किस तरह के कंपाउंड बनाते हैं? आयोनिक आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम लें तो लेट्स से वी हैव लाइक NaCl, KCl। तो क्या इस तरह के कंपाउंड्स हाइड्रोजन भी बनाता है? yes sir Yes, sir. हाइड्रोजन भी बनाता है, HCl. ठीक है। और आप बोल सकते हो कि
हेलोजन जो है वो हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, हेलोजन हाइड्राइड फॉर्म करते हैं, तो हाइड्रोजन भी उस तरह की रिएक्शन यहाँ पर शो करता है। और कुछ एग्जांपल्स अगर हम लें, जैसे देखो कार्बन के साथ हेलोजन की रिएक्शन, कार्बन फैमिली और हेलोजन फैमिली की रिएक्शन अगर आप देखो तो आपको कैसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जैसे आपने लिया CCl4, CCl4, तो इस तरफ हाइड्रोजन के साथ CH4 बनता है, ठीक है, CCl4 CH4। अगर आप सिलिकॉन की बात करें तो SiCl4 SiH4, तो इस तरह के आपको सिमिलर कंपाउंड्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। any other resemblance they show? Any other resemblance? सर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं, हाइड्रोजन उतना ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करता, ये जनरली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ओके सर। इट बिहेव्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, नॉट मच एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कभी भी आप सर इसकी, सर यस हाइड्रोजन का सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही नहीं होता ना, मतलब मल्टीपल। यस करेक्ट, वो -1 भी शो करता है, लेकिन कब शो करता है -1? हाइड्रोजन -1 कब शो करता है? नहीं पता सर ये। सर हाँ देखो, हाइड्रोजन -1 कब शो करेगा? जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करे या इलेक्ट्रॉन लूज करे? गेन करेगा सर। गेन। गेन करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन उसको, हाइड्रोजन को अगर इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो जिससे वो रिएक्शन कर रहा है मेटल वो में। इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहिए हाँ। मेटल्स के साथ। मेटल्स के साथ। तो मेनली कब होती है रिएक्शन? अल्कली मेटल्स, अल्कालाइन अल्कली अर्थ मेटल। मेटल्स, या फिर कुछ और मेटल्स के साथ भी, ठीक है। तो अगर मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो -1 शो करेगा। अगर वो नॉन मेटल के साथ जुड़ा है तब वो क्या शो करेगा? +1। +1, +1. ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं कि व्हाट आर सिमिलरिटीज दे हैव, रिजेम्बलेंस विद हेलोजेंस। नंबर 1 हमने क्या लिया यहाँ पर, जो हेलोजेंस होते हैं, अगर हम हेलोजन फैमिली की बात करें तो हेलोजेंस का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 NP5, NH2 NP5 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि दे कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दे कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। They can gain 1 electron to achieve the nearest noble gas electronic configuration. And similarly, hydrogen also shows the same property. ठीक है. Next, similar to halogens, it is a non-metal. It is a non-metal. हाइड्रोजन को हम नॉन मेटल की तरह काउंट करते हैं, ना कि मेटल की तरह, ठीक है। कभी भी आप नहीं देखेंगे कि हाइड्रोजन बिहेविंग एज ए मेटल, इट इज काउंटेड एज अ नॉन मेटल। सर स्क्रॉल करो। ठीक है ना, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? इट फॉर्म्स monovalent anions. It forms monovalent anion like halogens. It forms monovalent anions and therefore it is electronegative. Therefore we say it is electronegative in nature. ठीक है। जिस तरह से हेलोजेंस जो हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्शन शो करते हैं। सर यस बोलो। सर सेकंड पॉइंट में सिमिलर टू हैलोजेंस के बाद क्या लिखा है? सिमिलर टू हेलोजेंस इट इज अ नॉन मेटल। जिस तरह से हेलोजेंस नॉन मेटल होते हैं उसी तरह से हाइड्रोजन भी नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह से हेलोजेंस जो हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्शन शो करते हैं उसी तरह हाइड्रोजन भी सेम रिएक्शन शो करता है। इट ऑल्सो रिएक्ट्स विद मेटल्स। It reacts with metals and shows
-1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल बताएंगे इसका? जैसे आप जानते हैं कि क्लोरीन जो है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, NaCl बनाता है, उसी तरह से हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा? NaH। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल? जैसे आपने लिया CeBr2, तो सिमिलरली आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? CaH2, इस तरह से। ठीक है, और कोई पॉइंट? Sir, ionization enthalpy of hydrogen is close to fluorine. यस, एक्चुअली हाइड्रोजन जो है वो बहुत छोटा होता है, सबसे छोटा हाइड्रोजन है, करेक्ट। तो हाइड्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। द आयनाइजेशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर आप आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इज क्लोज टू फ्लोरीन एंड इट इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स। ठीक है, ये भी आप बोल सकते हैं। Sir, can you repeat fourth point? फोर्थ पॉइंट तो आपको लिखा है ना यहाँ पर, इट रिएक्ट्स विद मेटल्स एंड शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फिफ्थ पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इट हैज वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी, इट हैज वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सिमिलर टू फ्लोरीन। तो हमने ये देखा कि ये मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जो मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है। कुछ और पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। मेटल के साथ हमने रिएक्शन इसकी देख ली, ठीक है। चलिए एक और पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं कि बोथ हेलोजेंस एंड हाइड्रोजन फॉर्म सिमिलर कंपाउंड्स। सिमिलर कंपाउंड्स किस तरह के? So both halogens and hydrogen form similar compounds. कुछ examples इनके, some examples. Let's say we have CCl4, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है? CH4. We have SiCl4, तो यहाँ पर आपको मिलता है SiH4, इस तरह से। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। जैसे मान लो इसको हम लिख देते हैं, इट शोज similar products with electrolysis of aqueous alkali metal salts, with aqueous alkali metal salts। देखिए समझना है इसको। अगर मान लो हमने aqueous NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया, ठीक है, अगर मान लो मैंने aqueous NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया, aqueous NaCl लिया हमने और इसका हमने किया इलेक्ट्रोलिसिस, तो मुझे बताइए कि आपको एनोड पर क्या मिलेगा? Cl. क्लोरीन। Cl. Cl मत बोलिए, आप क्या बोलेंगे? आप क्लोरीन गैस। Cl2. एनोड पर आपको मिलेगा क्लोरीन गैस, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने किया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड कैल्शियम हाइड्राइड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड कैल्शियम हाइड्राइड CaH2, इसका एक केमिकल नेम होता है, वो आप याद रख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलिथ, ठीक है, याद रखना है, दिस इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलिथ। तो अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया CaH2 का, तो बताइए आपको एनोड पर क्या मिलेगा? व्हाट डू वी गेट ऑन एनोड? हाइड्रोजन गैस। Hydrogen. Hydrogen. करेक्ट। तो यहाँ पर भी आपको सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। Here we have similarity in what products we get at anode during electrolysis.
ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? सर हाँ बोलो। सर वो हाइड्रोलिथ वाला जो आपने नाम बोला है, जब हाइड्रोजन कैल्शियम के साथ बनाते हैं तभी हाइड्रोलिथ बोलते हैं, या कभी भी वो दो वैलेंसी वाले के साथ बनाते हैं तब हाइड्रोलिथ बोलते जब भी देखो, जब भी हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ या किसी के भी साथ जुड़ता है तो ऐसे कंपाउंड्स को इन जनरल हम बोलते हैं हाइड्राइड्स। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को इन जनरल बोलते हैं हाइड्राइड, लेकिन कैल्शियम हाइड्राइड का पर्टिकुलर नाम है हाइड्रोलिथ। तो हाइड्रोलिथ किसका नाम है? सिर्फ कैल्शियम हाइड्राइड का। हैं। ओके सर। ठीक है, आगे चलें। यस सर। Yes, sir. चलिए अब हम बात करते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की। तो बताइए कितने और कौन कौन से आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के? सर तीन सर, तीन है। आइसोटोप। तीन नाव सांगा। सर, डी और टी। डी, प्रोटीन, और ट्रिटियम। ड्यूटेरियम और वो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ट्रिटियम। ठीक है, प्रोटियम क्या होता है जो हम जनरली यूज करते हैं, जो कि मोस्ट अबंडेंट होता है, 1H1। ड्यूटेरियम क्या होता है? 1D2। ट्रिटियम क्या होता है? 1D3 नहीं 1T3। 1T3 या फिर आप 1H3 भी बोल सकते हो। ठीक है, आइसोटोप्स हैं ये सारे। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है? इनके सर सेम एटॉमिक नंबर सेम डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, इनमें क्या चीज सेम है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है? सर, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सेम है। तो यहाँ पर आप एक यूनिवर्सल फंडा याद रखना, ठीक है, कि जो भी सारे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हों, एक जनरल चीज बता रहा हूँ मैं आपको, जो भी सारे एलिमेंट्स ऐसे हों जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। मतलब ये एक जनरल फंडा बता रहा हूँ कि अगर आपको केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है तो केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलो आप या फिर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलो, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही बेसिकली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ना। आपने केमिकल Yes, sir. बॉन्डिंग ऑलरेडी पढ़ लिया है। Yes, sir. तो केमिकल बॉन्डिंग में भी हम क्या बोलते हैं कि जो भी बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड किसकी वजह से बनता है? प्रोटॉन्स की वजह से या न्यूट्रॉन्स की वजह से? इलेक्ट्रॉन। सर, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है, ना तो प्रोटॉन्स की वजह से ना न्यूट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो आपकी न्यूट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो बताइए मुझे कि ये जो आइसोटोप्स हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी या फिजिकल प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल। केमिकल। केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे, that due to having सेम नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं, सेम एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ड्यू टू हैविंग सेम एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। बताइए ये पॉइंट आप सबको क्लियर है? ठीक है, लेकिन Yes, sir. देखो इन सब का एटॉमिक मास अलग अलग है। बताओ सबसे भारी भरकम कौन है इनमें? ट्रिटियम। ट्रिटियम। ट्रिटियम सबसे भारी है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि अगर मान लो हम एक रेस लगाएं एक चूहे और हाथी के बीच में, तो कौन जल्दी दौड़ पाएगा? चूहा। हाँ। चूहा जल्दी दौड़ पाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो हम 3 कंपाउंड्स ले लेते हैं और तीनों कंपाउंड्स में एक कंपाउंड के अंदर जो है वो प्रोटियम के साथ बॉन्ड्स बने हुए हैं, दूसरे कंपाउंड में ड्यूटेरियम के साथ बॉन्ड बने हुए हैं और तीसरे कंपाउंड में ट्रिटियम के साथ बॉन्ड बने हुए हैं। तो मुझे ये बताइए कि कौन से बॉन्ड्स जल्दी टूट पाएंगे? सर, प्रोटियम वाले। किसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा, प्रोटियम या ट्रिटियम? सर, प्रोटियम। प्रोटियम वाले। तो ऑल्दो इनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होने के कारण ये तीनों प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये तीनों आइसोटोप अलग अलग रिएक्शन रेट शो करते हैं। क्या आप सभी इस बात से एग्री करते हैं?
Yes, Yes, sir. sir. स्टेबिलिटी भी बोल सकते हैं Yes, ना? sir. हाँ, मोबिलिटी भी बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग अलग होती है। ठीक है, तो बेसिकली इनकी रिएक्शन रेट अलग अलग होती है, और यही इन सब का वीक पॉइंट, इनका वीक पॉइंट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी यूज करते हैं। जब भी हमें रिएक्शंस को डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है, तो उस जगह हम कभी हम प्रोटियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, कभी ड्यूटेरियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, लेकिन ट्रिटियम हम यूज करना जनरली अवॉइड करते हैं। ट्रिटियम हम यूज करना उतना प्रीफर नहीं करते हैं। क्यों? सर वो रेडियोएक्टिव। लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव तो है, लेकिन वो रेडियो एक्टिव भी है। ठीक है, समझ रहे हो? रेडियो एक्टिव, अगर मान लो आप अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के पास अगर खड़े हो, तो बहुत हानिकारक हो सकता है ना आपके लिए। पता चला रिएक्शन करते करते आप ही कहीं निकल गए, Yes, sir. है ना? तो इसीलिए हम ट्रिटियम जनरली यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है। हम जनरली यूज करते हैं प्रोटियम और ड्यूटेरियम। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे ये पढ़ेंगे कि आपको कई बार प्रोटियम दिखाएगा या फिर ड्यूटेरियम के बॉन्ड्स दिखेंगे। ठीक है, और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट। दिस इज नोन एज आइसोटोपिक इफेक्ट। सो ड्यू टू हैविंग different atomic masses, due to having different atomic masses, their reaction rates are different. ये पॉइंट आप सबको समझ में आता है? Yes, sir. इन सब का रिएक्शन रेट अलग अलग होता है, दैट इज इट शोज आइसोटोपिक इफेक्ट। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट। आइसोटोपिक इफेक्ट किस तरह से होता है, ये आपको समझाने के लिए देखिए, अगर कोई प्रोटियम के साथ बॉन्ड बना हुआ है, इफ देयर इज सम बॉन्ड फॉर्म्ड विद प्रोटियम, तो प्रोटियम के साथ बना हुआ बॉन्ड 18 टाइम्स फास्टर किसी रिएक्शन में टूट जाता है एज कंपेयर टू द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड विद ड्यूटेरियम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड विद प्रोटियम इज 18 टाइम्स वीकर एज कंपेयर टू द बॉन्ड विद ड्यूटेरियम। एक और एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो हमने लिया इथीन। इथीन आप समझते हैं क्या होता है? C2H. यस सर, CH2। क्या होता है C2H। इथीन? C2H4. हाँ, C2H4। C2H4, इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब देखो, जो भी ऐसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनके ऊपर हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करके। ठीक है, तो अगर इस इथीन पर अगर मैं हाइड्रोजन ऐड करता हूं, और अगर मैं D2 ऐड करता हूं, एक बार मैंने ऐड किया इस पे H2 और एक बार मैंने ऐड किया D2, तो ये देखा जाता है कि एडिशन ऑफ H2 is twice faster as compared to the addition of D2 on ethene. रीजन आपको समझ में आ गया? Yes, sir. एक और आप यहाँ पे समझ सकते हो एग्जांपल इसका, that the rate of adsorption, adsorption का मतलब क्या होता है आप समझते हैं? No, sir. देखो, adsorption क्या होता है? अच्छा, absorption तो आप समझते होंगे। Yes, sir. ठीक है, एडजॉर्प्शन क्या होता है कि जैसे मान लो ये मैंने कोई सॉलिड सरफेस लिया, ये कोई सॉलिड सरफेस है, मानने की जरूरत नहीं, ये इनफैक्ट क्या है, सॉलिड है। ठीक है, तो किसी भी सॉलिड सरफेस पर वॉन्डरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से गैस मॉलिक्यूल्स इसकी सरफेस पर आकर चिपक जाते हैं। सिर्फ सरफेस पर आके चिपकते हैं, इसके अंदर बल्क में एंटर नहीं कर पाते हैं। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो हाइड्रोजन की फास्टर होती है एज कंपेयर टू द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ ड्यूटेरियम। रीजन आपको समझ में आ गया? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? Sir, नहीं समझा sir. Different atomic masses. हाँ, डिफरेंट एटॉमिक मास। तो उससे क्या फर्क पड़ा? जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो आसानी से टूट जाता है और सरफेस पर चिपक जाता है। ठीक है, जबकि ड्यूटेरियम भारी भरकम होने के कारण उसकी मोबिलिटी कम होती है, रेट ऑफ रिएक्शन कम होती है, तो वो उतनी आसानी से नहीं चिपक पाता सरफेस पर। सर इनफैक्ट एडजॉर्प्शन का डेफिनेशन लिखा मैं। एडजॉर्प्शन का डेफिनेशन आप लिख सकते हो। एडजॉर्प्शन क्या होता है? द फिनोमिना
where the gaseous molecules get attached only at the surface due to van der Waals forces of attraction and not enter the bulk का मतलब क्या होता है अंदर, ठीक है, and not enter the bulk is known as adsorption। तो एडजॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ कि जब कोई दूसरा मॉलिक्यूल सिर्फ, ये जनरली मैक्सिमम कहाँ देखा जाता है, सॉलिड सरफेस पर, सॉलिड की सरफेस पर गैसियस मॉलिक्यूल्स का चिपक जाना, इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। चलिए इसका आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे जब भी आप मार्केट से कोई नए लेदर शूज खरीदते हैं, तो आपने देखा होगा उसके अंदर कोई एक सेचेट होता है व्हाइट कलर का एक पैकेट रखा होता है अंदर। यस सर। क्या होता है वो, किस लिए रखते हैं उसे? सर मॉइस्चर सर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए। वो होता क्या चीज है उस व्हाइट सेचेट के अंदर, क्या होता है? सिलिका। ओके, कभी खोल के देखा आपने उसको, या फिर सीधे उठा के बस खाली फेंक दिया? किसी जूते काम के हमारे, उसका क्या सर करेंगे? बॉल्स होते हैं सर। सर हाँ सर देखा वाइट कलर balls के, होता सर है। क्रिस्टल टाइप होता हाँ, क्रिस्टल्स होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हम जनरली या तो चारकोल यूज करते हैं या फिर सिलिका यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, और जो भी जब लेदर बनता है तो उसकी वो स्मेल रहती है इनहेरेंट, ठीक है, तो वो उन बैड स्मेल को भी एब्जॉर्ब करता है। जो गैसेस हैं जिनकी वजह से बैड स्मेल आती है लेदर के अंदर, तो उन सब चीजों को वो एब्जॉर्ब करता है। समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है। है। यस सर। अब अगर बात की जाए अबंडेंस की अगर बात की जाए तो मुझे ये बताइए कि मार्केट में आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? प्रोटियम, उससे कम ड्यूटेरियम, और बहुत ही कम आपको मिलेगा ट्रिटियम, ठीक है। इनफैक्ट ट्रिटियम जो है वो रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है कि अगर आप ट्रिटियम के पास जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? सर क्या मिलेगा? बीमारी। बीमारी मिलेगी कैंसर हो जाएगा। देखो बेसिकली होता क्या है कि ट्रिटियम अगर मैंने यहाँ पर लिया, जैसे मान लो मैंने लिया 1H3, ठीक है। सो ट्रिटियम जो होता है ये रेडियो एक्टिव होता है, तो इससे हम दूर ही रहते हैं, ठीक है। 1H3, अब होता क्या है यहाँ पर, 1H3 अगर मान लो इसके मैंने 2 एटम्स लिए, 2 1H3 reacts together to give 2He4। चलो मैं इसको एक ही लेता हूँ, आपको एक से दिखा देता हूँ। तो 1H3 converts into 2He3 and it loses this beta particle, इसको बोलते हैं बीटा पार्टिकल। तो ये बीटा पार्टिकल की रेज निकलती है, किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल से कुछ अलग अलग तरह के पार्टिकल्स निकलते हैं, तो इस एक तरह के पार्टिकल को बोलते हैं बीटा पार्टिकल। तो ये बीटा एमिशंस या फिर बीटा डीके शो करता है, ठीक है। और ये बीटा रेस काफी हार्मफुल होती हैं हमारे बॉडी के लिए। तो इस तरह से ट्रिटियम जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, और इनफैक्ट ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के लिए हम उनकी हाफ लाइफ बताते हैं। हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ क्या होता है? सर कितने टाइम में वो आधा हो जाता है उसका अमाउंट? हाँ, वेरी गुड। देखो हाफ लाइफ क्या होता है, मतलब ये बेसिकली वो टाइम है जिसके बाद वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट आधा हो जाएगा, क्योंकि आप तो जानते हैं कि वो अगर रेडियो एक्टिव है तो वो कंटिन्यूअसली रेडिएशंस एमिट करता है और डिके होता जाता है। तो कुछ टाइम के बाद वो उसका अमाउंट आधा हो जाएगा, वो आधा बच जाएगा, मतलब आधा डिके हो गया, आधा बच गया। तो जो ट्रिटियम होता है उसका हाफ लाइफ बहुत ही कम होता है, और उसका हाफ लाइफ होता है 12.26 ईयर्स, ठीक है। इतना कम हाफ लाइफ होता है इसका, ट्रिटियम का। तो ट्रिटियम जो है वो इस तरह से बीटा रेडिएशन एमिट करता है, और ये ट्रिटियम जो है बहुत कभी कभी हम यूज करते हैं रिएक्शंस के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा चीप भी होता है और टॉक्सिक नहीं होता है। ये एक ऐसा रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जो टॉक्सिक नहीं होता है, थोड़ा चीप होता है, तो इसको कभी कभी हम रिएक्शंस में यूज करते हैं, ठीक है।
चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया कि किस सर तरह से हम, यस बोलो। सर वो बीटा टिके का लिखना है हमें। बीटा टिका के जो मैंने आपको यहाँ लिखा है आप वही लिख सकते हैं कि जो ट्रीटियम है वो बीटा रेडिएशंस एमिट करता है, इट एमिट्स बीटा रेडिएशंस। ठीक है, यस सर। चलिए आपको अगर देखना है कि आप ट्रीटियम कैसे बना सकते हैं, ठीक है, तो ट्रीटियम जो है आप न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू बना सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस। आप न्यूक्लियर रिएक्शन से बना सकते हैं। देखिए जैसे मान लो आपने लिया 7N14। अब देखो ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं ये हमारी जनरल रिएक्शन से थोड़ी सी अलग है। ठीक है, अलग होने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या इनफैक्ट एटॉमिक नंबर और मास नंबर का कोई लॉस नहीं होता है। मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट साइड में एटॉमिक नंबर्स का सम प्रोडक्ट साइड में एटॉमिक नंबर के सम के हमेशा बराबर होगा। मतलब LHS में एटॉमिक नंबर्स का सम RHS में एटॉमिक नंबर्स के सम के बराबर होगा, और सिमिलर विद मास नंबर। तो एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया, जब 7N14 जब नाइट्रोजन के इस आइसोटोप पर हमने न्यूट्रॉन्स से रिएक्शन करवाई, ठीक है, तब क्या होगा, 7N14 रिएक्ट्स विद अ न्यूट्रॉन टू गिव 6C12 और यहाँ पर इसके साथ आपको मिलेगा 1H3। आप समझ पा रहे हैं? देखिए एटॉमिक नंबर्स का सम करेंगे अगर लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या मिलेगा, 7 + 0 7 और राइट हैंड साइड में 6 + 1 7। सेम विद RHS 14 + 1 15 और यहाँ पर 12 + 3 15। समझ में आया आपको? यस सर। सर वहाँ पे स्मॉल एन क्या है? न्यूट्रॉन, स्मॉल n है न्यूट्रॉन, ओके कैपिटल सर। N नाइट्रोजन, स्मॉल n न्यूट्रॉन। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। मान लो मैंने लिया लिथियम 3Li6, इस पर हमने न्यूट्रॉन डाला 0N1, तो यहाँ से मुझे क्या मिल सकता है, 2He4, मुझे मिला 2He4 हीलियम और साथ में मिला 1H3 ट्रिटियम। बताइए यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन की। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, देखिए एक तो हमारे पास होता है जो आप सब जानते हैं, जो हम जनरली यूज करते हैं, जनरली जिसकी बात करते हैं, दैट इज नोन एज ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। ठीक है, और हमारे पास कौन कौन से टाइप्स हैं ये तो हम जानते हैं ऑलरेडी, तो इसके बारे में हम ज्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ये तो हुआ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, और क्या है हमारे पास, एक होता है हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन, वन मोर इज नोन एज एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन, एंड वन मोर कैटेगरी इज नोन एज एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन, आपने हाइड्रोजन बम का नाम सुना होगा ना? यस सर। तो हम वही देखने जा रहे हैं कि आखिर हाइड्रोजन बम होता क्या, अगर आपको कभी जरूरत पड़ी हाइड्रोजन बम बनाने की। ठीक है, वैसे आपको नहीं बनाना चाहिए, लेकिन हम समझ लेंगे यहाँ पर कि एटॉमिक हाइड्रोजन होता क्या है। ओके, चलिए तो वन बाय वन हम इन हाइड्रोजन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन तो आप जानते हैं, तो हम सीधे शुरुआत करेंगे नेसेंट हाइड्रोजन से। नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है, ये जो नेसेंट वर्ड है, ये नेसेंट वर्ड जो है ये जनरली यूज किया जाता है न्यूली बॉर्न के लिए। ठीक है, ये नेसेंट वर्ड का मतलब होता है न्यूली बॉर्न, या फिर अगर हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं नवजात। ठीक है, न्यूली बॉर्न नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब होता है न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन। तो ये क्या है कि जब भी नेसेंट हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है तो इसके तुरंत बनाया जाता है। इसको कभी कभी हम एको टर्म यूज करते हैं, जिस नोन एज इन सिटू। इन सिटू, इस तरह से इन सिटू मतलब जहां पर जरूरत पड़ती है तुरंत हम वहीं पर बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन होता क्या है, जैसे मान लो अगर आपने एक टेस्ट ट्यूब में कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए, अगर आपने किसी टेस्ट ट्यूब में जिंक के बहुत बारीक बारीक टुकड़े डाल दिए और आप ऊपर से उसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, तो देखते हैं क्या होगा
अगर हमने जिंक के ऊपर गलती से डाल दिया H2SO4 तो बताइए क्या होगा? Displacement reaction. हाँ, क्या मिलेगा मुझे? प्लस H2 ZnSO4 plus H2. प्लस H2 गैस। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन को जो अभी नया नया बना है इसको नाम दे दिया गया नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि किसी मेटल के साथ जब किसी एसिड या बेस की रिएक्शन की गई तो जो नया हाइड्रोजन बना उसको नाम दे दिया गया नेसेंट हाइड्रोजन। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. ठीक है, इसको बोलते हैं हम नेसेंट हाइड्रोजन। खासियत क्या है इसकी? इट इज मोर रिएक्टिव। ये एक एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड फिनोमिना है कि इट इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, इट इज मोर रिएक्टिव देन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। इट इज मोर रिएक्टिव देन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। ये हमको कैसे पता चला इट इज मोर रिएक्टिव? जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है ये कुछ एसिडिफाइड सॉल्यूशंस को रिड्यूस नहीं कर पाता है। जैसे अगर हम बात करें एसिडिफाइड MnO4 माइनस, Fe3 प्लस, Cr2O7 2 माइनस, ClO3 2 माइनस, तो इन एसिडिफाइड सॉल्यूशंस को ऑर्डिनरी हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस नहीं कर पाता है। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन कांट रिड्यूस देम। ठीक है, लेकिन जब इनमें नेसेंट हाइड्रोजन को डाला गया तो ये सारे जो है वो रिड्यूस हो गए। नेसेंट हाइड्रोजन कैन रिड्यूस देम। ठीक है, तो इस तरह से नेसेंट हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिव हाइड्रोजन। नेक्स्ट इज एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन कब बनता है? एक्टिव हाइड्रोजन तब बनेगा जब अपने ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर एक हाइड्रोजन गैस की स्ट्रीम को साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू पास किया। ठीक है, और आपने वोल्टेज जो है वो बहुत ज्यादा रखा उस डिस्चार्ज का। अगर आप बहुत हाई वोल्टेज रखते हैं ऑलमोस्ट अराउंड 30,000 वोल्ट्स, तो 30,000 वोल्ट्स पर जब आपने हाइड्रोजन गैस पर एक साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया तो यहाँ पर आपको मिलता है एक्टिव हाइड्रोजन। और एक्टिव हाइड्रोजन जो है ये भी ऑर्डिनरी हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो इसे हम जल्दी से देख लेते हैं एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है। सो व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड, और आप लिख सकते हैं subjected to silent electric discharge, सर साइलेंट वर्ड क्यों यूज किया इधर? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। साइलेंट का मतलब क्या होता है? शांत। बस यस। सर मुझे वापस समझाइए ना एक्टिव हाइड्रोजन। अभी हम पढ़ रहे हैं ना, देखो जब आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, आपने एक टेस्ट ट्यूब या फिर उसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, जैसा आपने देखो मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है? यस सर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर। यस सर। ठीक है, तो वहां पर एक डिस्चार्ज ट्यूब यूज की जाती है, देखा आपने? हाँ सर, डायग्राम में देखा है। हाँ डायग्राम में देखा है। ठीक है, तो वैसे ही ट्यूब को बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। तो वैसे ही उसी में जब आपने गैस भर दी और हाई वोल्टेज लगा दिया दोनों तरफ तो यहाँ पर डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो इसी डिस्चार्ज को बोल दिया गया साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो आपने ऑर्डिनरी टेम्परेचर यहाँ पर मेंटेन किया और ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, ठीक है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड एट ए वोल्टेज ऑफ 30,000 वोल्ट्स, जब इतने ज्यादा वोल्टेज पर आपने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया तब आपको मिलती है एटॉमिक हाइड्रोजन।
और एटॉमिक हाइड्रोजन को हम किस तरह डिनोट करते हैं? इसको हम या तो H की तरह डिनोट करते हैं, सिंपल H, या फिर H3 की तरह डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड इट इज हाईली रिएक्टिव, it is highly reactive, it is highly reactive and reacts with lead and sulfur directly, forming their hydrates. और हाइड्रेट्स बनाते हैं। हाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है? कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन आर इन जनरल नोन एज हाइड्रेट्स, ठीक है। जैसे सल्फर के साथ क्या बना लेगा? H2S, लेड के साथ क्या बना लेगा? PbH2, इस तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन की। एटॉमिक हाइड्रोजन, थोड़ा सा फर्क है एक्टिव हाइड्रोजन और एटॉमिक हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है। तो देखिए होता क्या है यहाँ पर, जैसे मान लो मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ कि जैसे मान लो हमने यहाँ से हाइड्रोजन गैस को पास किया, ठीक है। यहाँ से हमने हाइड्रोजन गैस को पास किया, सॉरी, यहाँ से आपने हाइड्रोजन गैस को पास किया इस तरह से, और यहाँ पर आपने 2 टंगस्टन के रॉड्स लगा दिए, ठीक है। यहाँ पर आपने टंगस्टन की रॉड्स लगा दिए और इसको आपने बना दिया पॉजिटिव टर्मिनल और इसको आपने बना दिया नेगेटिव टर्मिनल। तो अब देखो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को थोड़ा आसपास रखा हुआ है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होता है, तो उस इलेक्ट्रिक आर्क की वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर पास होती है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और क्या मिलता है आपको? आपको मिलता है यहाँ पर एटॉमिक हाइड्रोजन H, ठीक है। तो काफी हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होती है। तो बहुत हाई टेम्परेचर पर जब आप एक पॉजिटिव रोड और एक नेगेटिव रोड को आसपास लाते हैं तो एक इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होता है, और उस इलेक्ट्रिक आर्क की हाई एनर्जी डिस्चार्ज से यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो एटॉमिक हाइड्रोजन में ब्रेकअप हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। तो ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन है ये हाईली अनस्टेबल होता है, और हाईली अनस्टेबल होने के कारण इसका हाफ लाइफ भी बहुत कम होता है। इनफैक्ट इसका हाफ लाइफ होता है जस्ट 0.3 सेकेंड्स। तो 0.3 सेकंड के अंदर ये किसी के भी साथ रिएक्शन कर लेता है। तो इसीलिए जो भी अभी तक हमने हाइड्रोजन पढ़े यहाँ पर, उन सब में से एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये आपको समझ में आया कि एटॉमिक हाइड्रोजन किस तरह से बनता है? सर ये वाली प्रोसेस रिपीट कीजिए ना एक बार। देखिए आप ये डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं आपको लिखवा देता हूँ सीधा, ठीक है। जल्दी से डायग्राम बना लो, फिर मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ। बना लिया सर। ठीक है, तो आप लिखें, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय सर नहीं पासिंग, बनाए सर, सर थोड़ा रुक। यस सर, डन। it can be produced by passing molecular hydrogen through an electric Sir, arc. can you repeat again? It can be produced by passing molecular hydrogen through an electric arc set up between tungsten rods, set up between tungsten rods at temperature 3500 to 4000 degrees Celsius and at pressure around 1 atmosphere.
ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर जब आप दो टंगस्टन रोड्स को आसपास लाते हैं तो जो इलेक्ट्रिक आर्क बनता है उससे जो हाइड्रोजन हमें मिलता है उसे बोलते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हियर, नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन। Atomic hydrogen is highly unstable. Atomic hydrogen is highly unstable और इसका जो हाफ लाइफ होता है, हाफ लाइफ को हम इस तरह से डिनोट करते हैं टी हाफ। इसका हाफ लाइफ जो होता है वो जस्ट होता है 0.3 सेकेंड्स। 0.3 सेकेंड्स मतलब क्या क्या हुआ, देखो किसी भी सब्सटेंस की स्टेबिलिटी जितनी कम होगी, जितना स्टेबिलिटी कम उतना रिएक्टिविटी ज्यादा, समझ रहे हो। एटॉमिक हाइड्रोजन का स्टेबिलिटी बहुत कम होता है तो ये सिर्फ 0.3 सेकंड तक टिक पाता है और उसके बाद फिर से क्या बन जाता है, H2 बन जाता है और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर रिलीज करता है। तो एटॉमिक हाइड्रोजन इज हाईली अनस्टेबल, इसका हाफ लाइफ होता है 0.3 सेकंड्स और इमीडिएटली जो ये है कंबाइन हो जाता है टू फॉर्म H2 एंड लिबरेट्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट। ठीक है, सेकंड पॉइंट अबाउट दिस, it combines with several metals and non-metals. It combines with several metals and non-metals and act as strong reducing agent. And it acts as strong reducing agent. ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है ये। अब इसका यूज क्या है, हम कहाँ यूज करेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन, मतलब कॉमनली कहाँ यूज करेंगे, एटॉमिक बॉम्ब तो दूर की बात है। ठीक है, हम डे टू डे लाइफ में इसे यूज करते हैं या नहीं करते हैं? यस सर करते होंगे, पता नहीं पर। करते हो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी? जनरेट करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी लगती है ना, एटॉमिक हाइड्रोजन बनाने में इलेक्ट्रिसिटी लगती है। कहाँ यूज करेंगे, देखो इट इज यूज्ड इन वेल्डिंग टॉर्च। It is used in welding torch for cutting and welding metal plates. आपने कभी वेल्डिंग होते हुए देखा है? Yes, sir. यस सर। तो वहां पे इसे यूज किया जाता है। ठीक है, ये इसका एक काफी इंपॉर्टेंट यूज होता है जो आपको पता होना चाहिए। कटिंग और वेल्डिंग के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, इनकी रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है एटॉमिक हाइड्रोजन। Atomic hydrogen is more reactive, and then we have active hydrogen, and then we have nascent hydrogen, and then we have ordinary hydrogen. यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए अब एक और कैटेगराइजेशन हम पढ़ते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन्स के बारे में। सर स्क्रॉल पेज डन? यस देखो नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ते हैं। सर हाँ बोलो। सर एटॉमिक हाइड्रोजन को डिनोट कैसे करते हैं? एटॉमिक हाइड्रोजन को H से डिनोट किया जाता है, H। ओके सर। एटॉमिक हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन दोनों को डिनोट सेम तरीके से किया जाता है, लेकिन इनका प्रिपरेशन का तरीका अलग अलग था, इसीलिए इनका नाम अलग अलग पड़ गया। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं यहाँ पर
ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन, तो ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन क्या होते हैं। तो देखो ये बेसिकली आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं और अपने ही एक्सिस पर भी रोटेट करते हैं, Yes. ठीक है। तो जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स, द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आल्सो स्पिन अबाउट देयर ओन एक्सिस, ठीक है। तो जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं वो भी अपने एक्सिस की तरफ, एक्सिस की तरफ चारों ओर घूमते हैं। तो इसी स्पिन की वजह से यहाँ पर, अब देखो हाइड्रोजन में क्या होता है कि हाइड्रोजन के पास क्या है, बेसिकली एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा हाइड्रोजन एटम। जब भी आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं इन जनरल जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो वी आर ऑलवेज रिफरिंग टू H2। तो इन केस ऑफ H2 वी हैव टू न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और दूसरा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। अब यहाँ पर होता क्या है कि इन दोनों न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की स्पिन की वजह से एक न्यूक्लियर स्पिन हमें देखने को मिलती है। दोनों हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई में हमें एक स्पिन देखने को मिलती है, और अगर ये स्पिन सेम डायरेक्शन में होती है, जैसे मान लो अगर हम यहाँ पर देखें, ये मान लो एक हाइड्रोजन लिया मैंने, एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, एक हाइड्रोजन एटम आप समझ लो, और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। अगर मान लो इसकी न्यूक्लियर स्पिन इस डायरेक्शन में है और इसकी न्यूक्लियर स्पिन भी इसी डायरेक्शन में है, जब दोनों की स्पिन सेम डायरेक्शन में है तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन। जब न्यूक्लियर स्पिन सेम डायरेक्शन में होती है, या फिर आप ऐसे बोल दो पैरेलल न्यूक्लियर स्पिन, पैरेलल न्यूक्लियर स्पिन, अगर दोनों की स्पिन सेम डायरेक्शन में है तो इसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन। अगर ऐसा केस है जब ये जो दो हाइड्रोजन एटम्स हैं इनके जो न्यूक्लियस हैं इनकी स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक ऐसे और दूसरा ऐसे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन है तो इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोजन। आप समझ पा रहे हैं ऑर्थो हाइड्रोजन किसे बोलते हैं, पैरा हाइड्रोजन किसे बोलते हैं? यस सर। तो ये दो जो हैं ये बेसिकली हाइड्रोजन के दो न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स भी कहलाते हैं। दे आर आल्सो नोन एज न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स, कि जहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सिर्फ न्यूक्लियर स्पिन अलग अलग है, तो इनको न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स भी कहा जाता है, ठीक है। जहां न्यूक्लियर स्पिन सेम होती है उसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन, जहां न्यूक्लियर स्पिन अलग अलग डायरेक्शन में है उसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोजन। चलिए एक और चीज आप मुझे बताइए, यहाँ पर आपको क्या लगता है कि किस हाइड्रोजन का इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगा, या फिर कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? सर पैरा। सर पैरा। बिल्कुल सही बात, पैरा हाइड्रोजन विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। पैरा हाइड्रोजन विल बी मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबल का मतलब क्या है कि इसके अंदर इंटरनल एनर्जी कम होती है, क्योंकि ये दोनों स्पिन्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, तो नेट स्पिन किसकी क्या हो जाएगी, जीरो। रिजल्टेंट न्यूक्लियर स्पिन इन केस ऑफ पैरा हाइड्रोजन इज इक्वल टू जीरो, तो उसकी वजह से इसका इंटरनल एनर्जी कम होता है। तो आप ये लिख सकते हैं कि पैरा हाइड्रोजन का इंटरनल एनर्जी कम होता है, इट हैज लेस इंटरनल एनर्जी। On the other hand, the ortho hydrogen has more internal energy. Has more internal energy. और यहाँ पर आप एक और चीज बोल सकते हैं कि in case of ortho hydrogen, the resultant nuclear spin is equal to 1. चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ Yes, तक क्लियर है?
कि ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन में डिफरेंस क्या है। इनमें डिफरेंस न्यूक्लियर स्पिन का है। अगर दोनों न्यूक्लियर की स्पिन सेम डायरेक्शन में है तो उसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन। अगर उनकी स्पिन अलग अलग डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोजन। ऑर्थो हाइड्रोजन का इंटरनल एनर्जी ज्यादा होता है, पैरा हाइड्रोजन का इंटरनल एनर्जी कम होता है। ठीक है, तो अब देखो, जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन कंटेन्स बोथ द फॉर्म्स। किसी भी ऑर्डिनरी हाइड्रोजन के अंदर, उसके अंदर कुछ ऑर्थो परसेंटेज भी होता है, कुछ पैरा परसेंटेज भी होता है। मतलब उसका कुछ परसेंटेज जो है वो ऑर्थो में होता है, कुछ परसेंटेज पैरा में होता है। ठीक है, अब कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, उसमें ऑर्थो का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा या पैरा का ज्यादा होगा, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। क्योंकि ये जो ऑर्थो हाइड्रोजन है और पैरा हाइड्रोजन है, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होता रहता है, ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल होता रहता है। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ, देखो मेरी बात पे गौर करना, अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी। अगर इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी तो बताइए कौन सा फॉर्म, किसका प्रोपोर्शन ज्यादा होगा हाई टेम्परेचर ऑर्थो पर? हाइड्रोजन। ऑर्थो हाइड्रोजन का ऑर्थो प्रोपोर्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करना है, तो इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर, that ortho and para hydrogens are interconvertible. ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन आर इंटरकन्वर्टिबल। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखना है आपको, एट हाई टेम्परेचर, at high temperature the para form converts into ortho form। ठीक है, और मैक्सिमम आपको ऑर्थो का परसेंटेज कितना मिल सकता है, 75%। मैक्सिमम आपको ये देखने को मिलेगा, मैक्सिमम ऑर्थो कितना हो सकता है, 75%। ठीक है, तो अगर इसको मैं डिनोट करूं सिंबल से, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मान लो ये मेरे पास है पैरा हाइड्रोजन और ये मेरे पास है ऑर्थो हाइड्रोजन, इस तरह से। तो ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते रहते हैं, पैरा ऑर्थो में कन्वर्ट होता है, ऑर्थो पैरा में कन्वर्ट होता है। अगर हाई टेम्परेचर लिया तो हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, ऑर्थो की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। मतलब अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो पैरा जो है वो ऑर्थो में कन्वर्ट होगा, अगर मैंने टेम्परेचर कम किया तो ऑर्थो कन्वर्ट होगा पैरा में। ये आपको समझ में आता है? यस सर। हाँ सर। ठीक है, देखो अगर मैंने यहाँ पर लिया एट हाई टेम्परेचर, तो एट हाई टेम्परेचर आपका पैरा कितना हो जाएगा, 25%। ऑर्थो कितना हो जाएगा मैक्सिमम, 75%। 75%। अगर मैंने लिया एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, 0 केल्विन। 0 केल्विन, तो 0 यस सर, केल्विन पर क्या होगा, ऑर्थो ज्यादा होगा या पैरा ज्यादा होगा? दोनों सेम होंगे। नहीं नहीं, अगर बहुत ही मतलब मिनिमम टेम्परेचर ले लिया मैंने जितना पॉसिबल है, अच्छा, 0 फिर केल्विन से आप पैरा नीचे नहीं ज्यादा जा पैरा होगा। सकते हैं। पैरा पैरा ज्यादा होगा। हाँ, आप 0 केल्विन से तो और नीचे नहीं जा सकते। ठीक है, तो 0 केल्विन पर पैरा क्या हो जाएगा आपका, 100%। पैरा होगा आपका 100%, ऑर्थो होगा आपका 0%। यहाँ तक क्लियर है? सर फिर हाई टेम्परेचर पे तो ऑर्थो भी 100% होना चाहिए था ना? नहीं नहीं नहीं, देखा यही जाता है कि ऑर्थो फॉर्म मैक्सिमम 75% रहता है। ऑर्थो फॉर्म मैक्सिमम कितना हो सकता है, 75%। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इन दो आइसोमर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स। क्यों? बिकॉज ये है तो सेम हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर मास सेम है, बट न्यूक्लियर स्पिन इनकी अलग अलग होती है, इसलिए इनको बोलते हैं न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा। अब हम चलते हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रिपरेशन मेथड्स। सर यस बोलो।
सर अभी आपने बोला ना ये न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स है, तो फिर इसमें हम बोल सकते हैं कि ऑर्थो और पैरा के फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज या आप समझ सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑब्वियस सी बात है इनकी अलग होगी क्योंकि न्यूक्लियर स्पिन्स अलग अलग है दोनों की। ओके सर, और केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम ही होनी चाहिए। या ओके सर। ठीक है, चलो प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ डाई हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कई बार डाई हाइड्रोजन भी कहा जाता है क्योंकि अभी आप ऑलरेडी एटॉमिक हाइड्रोजन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो वो कंफ्यूजन हटाने के लिए H2 को डाई हाइड्रोजन भी कहा जाता है। प्रिपरेशन मेथड्स की यहाँ पर बात करते हैं। तो देखो अब आने वाले सारे चैप्टर्स में जो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स आएंगे इसके आगे, जब भी हम प्रिपरेशन की बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड्स दो तरह के पढ़े जाएंगे, दो तरह के। पहला लेबोरेटरी मेथड्स एंड दूसरा कॉमर्शियल मेथड्स। फर्क क्या है दोनों में? लेबोरेटरी मेथड्स जनरली वो होते हैं जब हम छोटे स्केल पर कोई चीज बनाते हैं तो उनको हम बोलते हैं लेबोरेटरी मेथड्स, ठीक है। जब आपको मास क्वांटिटी में बनाता होता है कॉमर्शियल मेथड्स, जब आपको कॉमर्शियल क्वांटिटी में बनाना होता है तो वहां पर आपको जो है और भी काफी फैक्टर्स देखने पड़ते हैं कि मतलब उसका कॉस्ट फैक्टर क्या होता है, वो सारे फैक्टर्स भी आपको देखने पड़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी मेथड्स और कॉमर्शियल मेथड्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं लेबोरेटरी मेथड्स। चलिए लेबोरेटरी मेथड्स में मैंने सबसे पहले लिया है यहाँ पर एक्शन ऑफ वाटर और स्टीम ऑन मेटल्स। एक्शन ऑफ वाटर और स्टीम ऑन मेटल्स कि अगर आप मेटल्स की रिएक्शन करवाएं वाटर या स्टीम के साथ तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो ठंडे पानी से रिएक्शन कर जाते हैं, ठीक है, और कुछ मेटल्स इतने नालायक होते हैं कि जो सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। ऐसे कौन कौन से मेटल्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले अल्कली मेटल्स, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ चलेगा। अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं बोलो? फर्स्ट ग्रुप वाले, Sodium, potassium. फर्स्ट ग्रुप ग्रुप 1। फर्स्ट ग्रुप, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सेकेंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप. ठीक है। तो अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि कुछ भी दे दो इनको, ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं। They react with cold water to liberate hydrogen gas. To liberate hydrogen gas. ठीक है। तो जैसे मान लो अगर आपने लिया कोई मेटल, ये मेटल मैंने लिया मान लो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम या कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है। अल्कली मेटल या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल अगर मैंने लिए और कोल्ड वाटर के साथ इनकी रिएक्शन करवा दी हमने, ठीक है, तो क्या होगा बताओ? क्या बनेगा यहाँ पर? मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्राइड। हाँ, मेटल्स को ठंड लग जाएगी, ठीक है, और क्या बन जाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। और साथ में क्या मिलेगा आपको? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये एक तरीका हुआ हाइड्रोजन गैस बनाने का। और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करते लेकिन स्टीम के साथ रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। ऐसे कौन कौन से मेटल्स हैं? कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे कॉपर, एग्जांपल लेते हैं हम। आयरन, आयरन। हाँ, आयरन हुआ, सर स्क्रॉल कीजिए ना। ठीक है, आयरन हुआ, मैग्नीशियम हुआ, जिंक, एल्यूमिनियम, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं और स्टीम के साथ रिएक्शन करने पर ये मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और साथ में लिबरेट करते हैं हाइड्रोजन गैस। बताओ यहाँ से आपको समझ में आता है? यस सर।
ठीक है, ये एक तरीका हुआ कि वाटर के साथ या फिर स्टीम के साथ मेटल्स की रिएक्शन करने पर आपको हाइड्रोजन गैस मिलता है। ठीक है, दूसरा तरीका हम यहाँ पर देखते हैं। और क्या तरीका हो सकता है हमारे पास? कुछ तरीके, आप कुछ रिएक्शंस आपने लैब में भी कभी पढ़ी होगी। जैसे एक तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपने किसी मेटल के साथ कोई डाइल्यूट एसिड डाल दिया, डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4, तब भी वहां पे क्या बनेगा? क्या बनेगा वहां पर? हाइड्रोजन गैस सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। लेकिन आपको इसमें एक चीज नोट करनी होगी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से जो मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है, जो मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर लाई करते हैं, ऊपर लाई करने का मतलब क्या हुआ कि उनका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर लाई करते हैं, उन पर जब हम डाइल्यूट एसिड की रिएक्शन करते हैं तो वहां पर हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। लेकिन जो मेटल्स नीचे लाई करते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स ऑन मेटल्स। एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स ऑन मेटल्स। तो यहां पर हम लिख लेंगे कि मेटल्स प्रेजेंट अबव हाइड्रोजन। सर आप रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर रहे हो क्या? देखो, रिएक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बस थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है, reactivity series is based on the reactivity of the individual element. Electrochemical series is based on their oxidation potential, या फिर आप बोल सकते हो उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसकी बेसिस पे हम जब मेटल्स को, आयंस को अरेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बस थोड़ा सा फर्क होता है दोनों में। सिर्फ मेन फर्क जो आता है वो सोडियम और पोटेशियम की पोजीशन में आता है। ठीक है, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम की पोजीशन में थोड़ा फर्क आता है दोनों में। तो आगे हम पढ़ेंगे, वैसे आगे जो चैप्टर्स आएंगे उनमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर ली जाएगी। ओके सर। तो अभी के लिए, फिर कभी मैं आगे आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा उसे याद रखने का। तो मेटल्स प्रेजेंट अबव हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज react with dilute acid। डाइल्यूट एसिड आप या तो HCl ले सकते हैं या फिर आप H2SO4 ले सकते हैं टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ठीक है, रिएक्शन क्या होती है? मान लो हमने लिया जिंक। जिंक की जब आपने रिएक्शन करवाई एसिड के साथ, तो एसिड से आपको मिला H+। तो क्या होगा? अब मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन के ऊपर जो मेटल्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है। ऑक्सीडेशन आसानी से होगा, इसका मतलब क्या हुआ? जिंक विल गेट कन्वर्टेड इनटू Zn2+, और आपको क्या मिल जाएगा बदले में? हाइड्रोजन गैस। ये मेथड आपको समझ में आता है? यस सर। सर आपने बस हाइड्रोजन लिया है क्या? कहाँ पर? सर नहीं, पूरा एसिड का नाम नहीं लिखा आपने। आप लिख सकते हैं, मैंने क्या लिखा है? H+। जो भी एसिड है उससे मुझे क्या मिलेगा? H+ मिलेगा ना। यस सर, समझ गया सर। हाँ, तो मेटल प्लस H+ विल गिव मी सॉल्ट ऑफ दैट मेटल एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये एक तरीका हुआ, और कुछ और भी तरीके हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जैसे एक्शन ऑफ अल्कली ऑन मेटल। कोई स्ट्रॉन्ग बेस भी अगर आप मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहां पर भी आपको हाइड्रोजन गैस मिलता है। ठीक है, और कुछ अगर हाइड्राइड्स हैं उन पर अगर आप हाइड्राइड्स पर अगर आप गलती से पानी डाल दें तो उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और तब भी आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई डाउट्स किसी को? नो सर। नो सर। तो अभी तक जो हमने डिस्कस No, किया हाइड्रोजन sir. के बारे में वो आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, सो वी एंड हियर टुडेस क्लास एंड देन वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Yeah. Thank you.